So we'll discuss today about cerebellum. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, अच्छे से सुनना। और कुछ डाउट या फिर समझ नहीं आया तो फिर क्वेश्चन करना चैट बॉक्स में। ओके, सो विल स्टार्ट द cerebellum. Cerebellum is the largest part of hind brain. ये सबको पता ही है। Cerebellum means little brain. This is a little brain. It is the largest part of hind brain. So its weight about 150 gram. ठीक है, it is located in the posterior cranial fossa underneath the tentorium cerebelli. Tentorium cerebelli is a part of the meninges, so underneath the tentorium cerebelli it is present or located in the posterior cranial fossa. ठीक है, so and behind the pons and medulla oblongata. Pons and medulla oblongata के पीछे है. So it is separated from the pons and medulla by a cavity of fourth ventricle. ठीक है. So mainly it serves three function. Cerebellum ये पूरे brain stem के साथ 3 connections है उसके, superior, middle and inferior cerebellar peduncle. ठीक है, उसके मतलब ये पेडंकल cerebellum और brain stem को connect करते हैं. Now 3 primary functions are there in case of cerebellum. So what are these? This maintenance of posture maintain करने में help करते हैं, muscle tone maintenance में help करते हैं, and coordination of voluntary motor activity. जितने सारे हम लोगों का voluntary motor activities है, these are all maintained by the cerebellum. ठीक है. Also it adjusts coordination of skillful volitional movements by perfect timing among the contracting groups of agonist and antagonist muscle. ठीक है, वो skillful movement भी उसमें भी help करते हैं. शेरिंगटन के हिसाब से शेरिंगटन रिगार्डेड द cerebellum as the head ganglion of proprioceptive system. जो जितने मतलब proprioceptive system जो है हमारे बॉडी में, so according to Sherrington the cerebellum act as a head ganglion. ठीक है, of the proprioceptive system. So the cerebellar disease manifests the some dysfunction. क्या क्या dysfunction है? If there is a disease which is related to the cerebellum, तो क्या क्या dysfunction होता है? Disequilibrium होता है. ठीक है, उसमें loss of balance में जनरली होता है, disequilibrium बोलते हैं. हाइपोटोनिया हो सकता है, that is loss of resistance. ठीक है, normally offered by muscle on palpation. Then dyssynergia हो सकता है. Dyssynergia means loss of coordinated muscular activities. So these are the problem or dysfunction we can see in case of disease related to the cerebellum. क्या क्या है? disequilibrium है, hypotonia है and dyssynergia है. ठीक है. Now coming to the next part which is the external features of cerebellum. ठीक है, external features of cerebellum. Now the external features of the cerebellum, it has 3 parts, 2 surfaces, 2 notches and 3 well marked fissure. ठीक है, इसमें 2 well marked fissure है, 2 notch है, 2 surface है and 3 parts are there. So first we'll come to the parts. ठीक है, see the diagram, बुक के डायग्राम भी देख सकते हो, पीपीटी के डायग्राम भी देख सकते हो. ओके, द cerebellum consists of 2 large lateral hemispherical lobe. ये तो पता ही है, राइट एंड लेफ्ट cerebellar hemispheres are there which are united to each other by a narrow median worm like portion. देखो पिक्चर देखो, एक नैरो मीडियन वर्म लाइक पोर्शन, मतलब वर्म जैसा एक स्ट्रक्चर से ये दोनों सेरिबेलर हेमिस्फीयर कनेक्ट होता है, विच इज नोन एज द वर्बिस.
ठीक है, जिसको हम लोग वर्मिस बोलते हैं। द सुपीरियर एंड इंफीरियर एस्पेक्ट्स ऑफ वर्मिस आर टर्म्ड एज सुपीरियर एंड इंफीरियर वर्मिस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, नाउ द रिज लाइक सुपीरियर वर्मिस इज कंटिन्यूअस on either side with the superior surface of the cerebral hemisphere। दिख ही रहा है। Now the inferior vermis is more clearly demarcated from the hemispheres in the floor of the vallicular cerebelli। vallicular cerebelli क्या है ये बात बताऊंगी धीरे धीरे। So these are the part, दो cerebellar hemisphere and दो cerebellar hemisphere को कौन connect कर रहा है, बीच में एक worm like structure extension we can see, this is known as the vermis। So vermis has a superior part and inferior part which termed as a superior vermis and the inferior vermis। ठीक है, now coming to the, क्या हो गया, now coming to the surfaces। ठीक है, so the superior surface of the cerebellum is convex। if we see the superior surface of the cerebellum, आप लोग अगर स्पेसिमेन देखोगे तो समझ आएगा। the superior surface of the cerebellum is convex। the two cerebellar hemisphere are continuous with each other on this surface। दोनों जो हेमिस्फीयर है ये सुपीरियर सरफेस में एक के साथ एक कंटिन्यू होता है। Okay, the inferior surface presents a deep median notch which is known as the vallicula। ठीक है, inferior surface अगर देखेंगे so we can see there a notch, this is known as the vallicula। ठीक है, which separates the two cerebellar hemisphere। Manju, audio not clear, am I audible to all clearly? yes cerebellum का दो सरफेस, सॉरी हाँ दो सरफेस है। तो सुपीरियर सरफेस जो था, सुपीरियर सरफेस दोनों जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, सुपीरियर सरफेस अगर देखेंगे दिस टू हेमिस्फीयर कंटिन्यूअस विथ ईच अदर एट दिस सरफेस। ठीक है, नाउ कमिंग टू द इंफीरियर सरफेस। इंफीरियर सरफेस देखेंगे तो उसमें एक नॉच, क्लियर नॉच दिखेगा। सो दिस नॉच इज नोन एज द वैलिक्यूला। ठीक है, वैलिक्यूला दोनों सेरिबुलर हेमिस्फीयर को सेपरेट करते हैं। नाउ द फ्लोर ऑफ द वैलिक्यूला इज वैलिक्यूला इज फॉर्म बाय द इंफीरियर वर्मिस। जो फ्लोर है वैलिक्यूला का विच इज फॉर्म बाय द इंफीरियर वर्मिस दिख ही रहा है नॉच में। ओके, एंड इज लिमिटेड ऑन ईच साइड बाय सल्कस वैलिक्यूला। मतलब ईच साइड में जो लिमिटेड है बाय द सल्कस वैलिक्यूला, मतलब वो साइड का जो सल्कस है उसको बोलते हैं सल्कस वैलिक्यूला। ठीक है, ये सरफेस का हो गया। नाउ कमिंग टू द notches। So the anterior aspect of the cerebellum is marked by a wide shallow anterior cerebellar notch। If you take the specimen then you can easily understand जो एंटीरियर एस्पेक्ट क्या है, पोस्टीरियर क्या है, सुपीरियर सरफेस कौन सा है, इंफीरियर कौन सा है। तो एंटीरियर एस्पेक्ट में अगर हम लोग देखेंगे सो सेरिबेलम इज मार्क्ड बाय अ वाइड शैलो एंटीरियर सेरिबेलर नॉच। ठीक है, उसमें एक एंटीरियर सेरिबेलर नॉच है। ये डायग्राम देखो तो इसमें थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। तो ये दिस नॉच इज फॉर द पोन्स एंड मेडुला। ठीक है, जहाँ पे पोन्स एंड मेडुला एकोमोडेट होता है anterior cerebellar notch में। Now the posterior cerebellar notch is deep and narrow and lodges the falx cerebelli। ठीक है, posterior cerebellar notch भी यहाँ पे डायग्राम, ये पिक्चर देखो इसमें क्लियर दिख रहा है। This notch is for the falx cerebelli। Falx cerebelli is a part of the meninges। So these are the notches we can see in case of cerebellum। Now coming to the fissures। ये एक्सटर्नल फीचर्स बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, इंटरनल ऑल्सो इज इम्पॉर्टेंट।
बट एक्सटर्नल फीचर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है थियोरेटिकली एज वेल एज योर वाइवा एस्पेक्ट, क्योंकि वाइवा में सेरिबेलम पूछते हैं बहुत, ठीक है. नाउ कमिंग टू द फीचर्स, व्हाट आर द फीचर्स वी कैन सी हियर. द हॉरिजॉन्टल फीचर इज मोस्ट conspicuous and runs along the lateral and posterior margin of the cerebellum. ये आप लोगों को थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा क्योंकि स्पेसिमेन अभी आप देख नहीं पा रहे हो. यू हैव टू इमेजिन विथ योर पिक्चर डायग्राम, ठीक है. तो फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल फीचर. ये फीचर भी क्लियरली दिखता है. हॉरिजॉन्टल फीचर इज मोस्ट conspicuous and runs along the lateral and posterior margin of the cerebellum. लेटरल और पोस्टीरियर मार्जिन से ये हॉरिजॉन्टल फीचर जाते हैं, ठीक है. सी द हॉरिजॉन्टल फीचर, यहाँ पे किसको लेबलिंग किए हैं, थोड़ा सा डायग्राम देख लो, ठीक है. इट मार्क्स द junction between the superior and inferior surface of the cerebellum. Remember this horizontal feature is important क्योंकि क्यों important है, ये सेपरेट करते हैं. मतलब horizontal feature अगर हम लोग देख लेंगे तो we can separate with this feature the superior and inferior surface of the cerebellum. superior inferior surface को ये horizontal feature ही separate करते हैं, ठीक है. Next is the posterolateral feature. Posterolateral feature lies on the inferior of the cerebellum. Posterolateral देखो जो पीपीटी का जो पिक्चर है, नीचे वाला जो डायग्राम है उसमें posterolateral feature है. तो which lies on the inferior surface and separates the from the rest of the cerebellum. अब cerebellum के बहुत सारे lobes हैं, वो मैं धीरे धीरे अभी बताऊंगी. सो जो फ्लोक्यूलर नोड्यूलर लोब है, ये पोस्टेरोलेटरल फीचर पूरे सेरिबेलर हेमिस्फीयर को ये नोड से, फ्लोक्यूलर नोड्यूलर नोड से सेपरेट करते हैं. सो दिस फीचर पोस्टेरोलेटरल फीचर एंड दिस फीचर लाइज एट द inferior surface. Now the V-shaped feature we can see here, this is known as the fissure prima, ठीक है, ऑन द सुपीरियर सरफेस. सुपीरियर सरफेस में एक वी शेप का फीचर हम लोग देखेंगे जिसको प्राइमरी फीचर भी बोल सकते हैं. फीचर प्राइमा, समटाइम्स वी कैन कॉल फिशुरा प्राइमा, ठीक है, वो सुपीरियर सरफेस में है. दैट कर्व्स द सुपीरियर वर्मिस एट द जंक्शन ऑफ इट्स एंटीरियर 2/3 एंड पोस्टीरियर 1/3, ठीक है. वर्मिस को कट करते हैं और सेरिबेलम को डिवाइड करते हैं एंटीरियर 2/3 और पोस्टीरियर 1/3 में, ठीक है. इट डिवाइड्स द कॉर्पस सेरिबेलाई इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब्स. एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब में भी सेरिबेलम को डिवाइड करते हैं. ये फिशर प्राइमा और प्राइमरी फिशर यू कैन ऑल्सो से, ठीक है. सो दीज आर द फिशर. Now there are several other fissures which subdivide the vermis and cerebellar hemisphere into lobules, ठीक है. वर्मिस को बहुत सारे फिशर्स हम लोग देखेंगे इसमें, जो अभी थियोरिटिकली हम लोगों को जानना है, बट अगर प्रैक्टिकली हम लोग स्पेसिमेन को देखेंगे सो ये मेन फिशर वी कैन सी वेरी क्लियरली. बट अभी जो मैं बताऊंगी जो लोब्यूल में डिवाइड करते हैं सेरिबेलर हेमिस्फीयर एंड वर्मिस को, yes प्राइमरी फिशर इज फिशर प्राइमा, yes, ठीक है. तो ये और बहुत सारे फिशर्स ऐसे होगा. तो जो सेरिबेलर हेमिस्फीयर बोथ द साइड एंड वर्मिस उसको बहुत सारे लोब्यूल में डिवाइड करते हैं. सो व्हाट आर दीज, हाँ, एक सेकेंड. See this picture, okay. So first coming to the anterior lobe. Anterior lobe actually ये हम लोग मेन 3 लोब में इसको डिवाइड किए हैं. Then these lobes are again subdivided into lobules by many fissures, ठीक है. ये प्रैक्टिकली अगर स्पेसिमेन हाथ में लेंगे तो हम लोग को क्लियरली बहुत सारे फिशर्स है समझ आएगा, लेकिन कौन सा क्या फिशर ये समझ नहीं आएगा. वी हैव टू इमेजिन, बट थियोरिटिकली ये हमको बहुत अच्छे से जानना है, ठीक है. विद द डायग्राम वी हैव टू राइट ऑल्सो,
ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो ये बहुत अच्छे से लिखना होता है। समटाइम्स ये सेरिबेलम का जो सब डिविजन्स है ये शॉर्ट नोट भी आता है। ओके, सो वी डिवाइड दिस होल सेरिबेलम इनटू 3 lobes. The anterior lobe lies on the superior surface anterior to the fissure prima. मतलब फिशर प्राइमा के सामने वाला जो पार्ट है उसको एंटीरियर पार्ट है, उसको एंटीरियर लोब मानेंगे। देन पोस्टीरियर और मिडिल लोब लाइज बिटवीन द फिशर प्राइमा एंड द सुपीरियर सरफेस, ऑन द सुपीरियर सरफेस एंड द पोस्टेरोलेटरल फिशर। मतलब फिशर प्राइमा और प्राइमरी फिशर और पोस्टेरोलेटरल फिशर के बीच वाला जो पार्ट है, सो दिस इज नोन एज द पोस्टीरियर और मिडिल लोब। ठीक है, नाउ द फ्लोक्यूलोनोडुलर लोब इज द स्मॉलेस्ट ऑफ all and lies on inferior surface in front of the posterolateral fissure. तो ये अलग से फ्लोक्यूलोनोडुलर लोब ना अलग से ही थोड़ा सा वो जो इंफीरियर सरफेस है सेरिबेलम का, तो उसका जो पोस्टेरोलेटरल सरफेस है उससे थोड़ा नीचे मतलब एंटीरियर तरफ हम लोग देखेंगे फ्लोक्यूलोनोडुलर लोब। सो दिस 3 lobes वी कैन सी, ये डायग्राम देखो तो समझ में आएगा। दिस 3 lobes वी कैन सी वेरी क्लियरली हियर। सो फिशर प्राइमा के सामने वाला पार्ट anterior lobe, then between the fissure prima and the posterolateral fissure उसके वो वाला middle और posterior lobe और flocculonodular lobe अलग से है। So this lobes are divided, again subdivided into many lobules. So what are these? Coming to the anterior lobe first, ठीक है। फर्स्ट विल सी द लोब्यूल्स ऑफ द वर्मीज। मतलब वर्मीज को ये कौन से लोब्यूल में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट एंटीरियर लोब में हम लोग 3 वर्मीज का 3 लोब्यूल्स देखेंगे। व्हाट आर दिस वर्मीज का? फर्स्ट विल बी जो फर्स्ट नंबर है, दिस इज फर्स्ट विल बी द लिंगुला। ठीक है, फर्स्ट लिंगुला। सेकेंड विल बी योर सेंट्रल लोब्यूल, सेंट्रल लोब्यूल। देन द कलमेन, देन कलमेन। ठीक है, और पिक्चर है कि नहीं देख रही हो? एक सेकेंड। लिंगुला, सेंट्रल लोब्यूल, कलमेन। See this picture. So I'm telling about the anterior lobe. ठीक है, anterior lobe of vermis. These are the subdivisions of vermis or lobules of vermis. So from above downward, तो first anterior lobe 3 में divide होता है, lingula, central lobule and culmen. ठीक है, next posterior lobe में आओ, posterior और middle lobe जो भी बोलो, in between the fissure prima and the posterolateral fissure. ठीक है, उसमें क्या क्या है? declive, then folium, then tuber, then pyramid, then uvula. ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, कलमेन के बाद ये पूरे मिडल लोब का है, डिक्लाइव, फोलियम, ट्यूबर, पिरामिड्स, यूवुला। ओके, इसको ना ऐसे याद कर सकते हो, LCCD, FTP, LCCD। ठीक है, L2CD, CCD भी बोल सकते हो, 2CD भी बोल सकते हो, LCCD, देन FTP, देन UN। हाँ, ठीक है, अगेन आई रिपीट, LCCD। ठीक है, दीज आर द लोब्यूल्स ऑफ द वर्मिस, LCCD, FTP, UN। ठीक है, LCCD, FTP, UN। सो एंटीरियर लोब डिवाइड होता है लिंगुला, सेंट्रल लोब्यूल एंड कलमेन में। देन 5 लोब्यूल्स वी कैन सी इन पोस्टीरियर और मिडिल लोब, डिक्लाइव, फोलियम, ट्यूबर, पिरामिड्स एंड यूवुला। और जो फ्लोक्यूलोनोडुलर लोब है उसमें अलग से नोड्यूल्स होता है। वर्मिस का जो लोब्यूल है उसको हम लोग नोड्यूल्स बोलेंगे। तो LCCD, FTP, UN। क्लियर एवरीवन? The lobules of the vermis, please reply. LCCD, FTP, UN. LCCD, FTP, UN.
ठीक है, लिंगुला, सेंट्रल, कलमेन, डिक्लाइव, सेंट्रल लिंगुला, सेंट्रल लोब्यूल, कलमेन, डिक्लाइव, फोलियम, ट्यूबर, पिरामिड्स, यूवुला, नोड्यूल. ठीक है, these are the lobules of the vermis. Now we'll see the lobules of the cerebellar hemisphere. cerebellar hemisphere में क्या क्या lobules होता है. Yes, इसमें है. अच्छा, इसी को देखते हैं हम लोग. ओके, सी दिस पिक्चर फर्स्ट. वर्मिस का फर्स्ट जो लोब्यूल है, दिस इज नोन एज द लिंगुला. ठीक है, सो लिंगुला इट डजंट हैव द लेटरल प्रोजेक्शन. इसका कोई लेटरल प्रोजेक्शन नहीं है. लिंगुला मतलब ये क्या हो रहा है, लिंगुला का, कैन यू सी द डायग्राम ऑन द पीपीटी? दिख रहा है क्या पीपीटी का? प्लीज रिप्लाई, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है. ओके ओके ओके, वेरी गुड. सो लिंगुला का जो लेटरल प्रोजेक्शन है वो नहीं होता है. सो लिंगुला से रिलेटेड सेरिबेलर हेमिस्फीयर का जो पार्ट है वो नहीं है, इसीलिए लिंगुला से रिलेटेड मतलब लेटरल साइड में कोई प्रोजेक्शन नहीं है, नाम भी नहीं है. नेक्स्ट इज कलमेन, सॉरी सेंट्रल लोब्यूल. तो सेंट्रल लोब्यूल के साथ साथ जो सेरिबेलर हेमिस्फीयर का पार्ट हम लोग देखेंगे, दिस इज नोन एज द आला. ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे आला, सेंट्रल लोब्यूल के साथ साथ. देन आफ्टर द सेंट्रल लोब्यूल कलमेन, वर्मिस का पार्ट है कलमेन. सो कलमेन के साथ हम लोग जो पार्ट बोथ द साइड वी कैन सी इन सेरिबेलर हेमिस्फीयर, दिस इज नोन एज द क्वाड्रेंगुलर लोब्यूल. उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेंगुलर लोब्यूल. देन जो डिक्लाइव के साथ साथ है, डिक्लाइव के साथ साथ हम लोग बोलेंगे लोब्यूलस सिंप्लेक्स, और सिंप्लेक्स लोब्यूल भी बोल सकते हो, लोब्यूलस सिंप्लेक्स और सिंप्लेक्स लोब्यूल. देन फोलियम के साथ साथ जो है वो सुपीरियर सेमिलुनर लोब्यूल. ये आप लोगों को थोड़ा याद रखना पड़ेगा. ठीक है, फोलियम के साथ है सुपीरियर सेमिलुनर लोब्यूल, और ट्यूबर के साथ है इंफीरियर सेमिलुनर लोब्यूल. सुपीरियर सेमिलुनर लोब्यूल विद द फोलियम, एंड ट्यूबर के साथ है इंफीरियर सेमिलुनर लोब्यूल. देन पिरामिड के साथ है बाइवेंट्रल लोब्यूल, biventrial lobule with the pyramid. After the pyramid uvula, uvula के साथ है tonsil. uvula के साथ जो part we can see in cerebral hemisphere, this is known as the tonsil. ठीक है, और nodules तो flocculonodular lobe का है, तो उसका जो lateral extension है, this is known as the flocculus. flocculus, इसीलिए this part is known as the flocculonodular lobe. ठीक है, nodule is a lobule present in vermis, and the flocculus is the nodules present in the cerebellar hemisphere. ठीक है, so these are the subdivisions we can see anatomical. This is known as the anatomical subdivisions. So these are the subdivisions we can see in case of cerebellar hemisphere as well as the vermis. ठीक है, again I repeat, see this picture. So about the vermis, lingula, central lobule, culmen, declive, folium, tuber, pyramids, uvula, nodule. L C C D F T P U N. ठीक है, अब लिंगुला के साथ सेरिबेलर हेमिस्फीयर का कोई लेटरल प्रोजेक्शन नहीं है, सो लिंगुला के साथ कुछ भी नहीं है. आफ्टर दैट सेंट्रल लोब्यूल, सेंट्रल लोब्यूल के साथ जो पार्ट है, दिस इज नोन एज आला. देन कलमेन के साथ जो है, दिस इज द क्वाड्रेंगुलर लोब्यूल. आफ्टर द डिक्लाइव के साथ है लोब्यूलर सिंप्लेक्स और सिंप्लेक्स लोब्यूल. देन फोलियम के साथ है सुपीरियर सेमिलुनर लोब्यूल. ट्यूबर के साथ है इंफीरियर सेमिलुनर लोब्यूल. देन पिरामिड के साथ है बाइवेंट्रल लोब्यूल, एंड यूवुला के साथ है टॉन्सिल, एंड नोड्यूल के साथ है फ्लोक्यूलस.
फ्लोक्यूलोनोड्यूलर लोब में। क्लियर? इसमें देखो, ये पिक्चर भी देख सकते हो। यस एवरीबडी, हैव यू अंडरस्टूड एवरीवन? Please reply. Okay, these are the anatomical subdivision. Remember, this is the anatomical subdivisions. Now we have the morphological subdivisions also. ठीक है? Okay. So now we have the morphological subdivisions also. See this picture. So in case of morphological subdivisions, this is based on the phylogenic and functional criteria, ठीक है, of the cerebellum. So this divides into three parts. If we see the morphological classification, this divides the cerebellum into three parts. क्या क्या है? Archaeocerebellum, Paleocerebellum and Neocerebellum. ठीक है. So what is Archaeocerebellum? Archaeocerebellum also we can say vestibular cerebellum. Archaeocerebellum को हम लोग vestibular cerebellum बोलते हैं. So phylogenetically, it is the oldest part of the cerebellum. The fissures and lower amphibians possesses only this component of the cerebellum. It consists of flocculonodular lobe and lingula. ठीक है. So this ये totally functional है और phylogenetical है. ठीक है, based on the phylogenetic and functional criteria. So this is the morphological classification. So in case of archaeocerebellum, archaeo means, you know, these are the old बोलते हैं. archaeo का मतलब है old. So also you can say this is the vestibular cerebellum. So what are the part of the cerebellum we can see in this archaeocerebellum? So एक है lingula और flocculonodular lobe. ये दोनों रहते हैं archaeocerebellum में. So archaeocerebellum is chiefly vestibular in connection. कनेक्शन देखेंगे तो टोटल वेस्टिबुलर है एंड कंसर्न विद द मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, टोन एंड पोस्चर ऑफ ट्रंक मसल. मतलब बॉडीज़ के जितने सारे मसल हैं उसके टोन, इक्विलिब्रियम मेंटेनेंस में ये हेल्प करते हैं. सो दिस इज टोटल वेस्टिबुलर. ठीक है. नेक्स्ट इज द पैलियोसेरेबेलम. पैलियोसेरेबेलम ऑल्सो नोन एज द स्पाइनल सेरेबेलम. सो फाइलोजेनेटिकली इट इज़ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेरेबेलम टू अपीयर. मतलब पहले होता है आर्कियोसेरेबेलम, ये सबसे पुराना है. मतलब फर्स्ट दिस आर्कियोसेरेबेलम विल डेवलप. आफ्टर दैट appearance of the पैलियोसेरेबेलम. ठीक है. इन टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स विद द अपीयरेंस ऑफ लिम्ब्स. लिम्ब अपीयर होता है जैसे रेप्टाइल्स में हो, बर्ड्स में हो. इट कंसिस्ट ऑफ एंटीरियर लोब एक्सेप्ट लिंगुला. पूरे एंटीरियर लोब रहता है एक्सेप्ट लिंगुला, क्योंकि लिंगुला ऑलरेडी इट इज़ अ पार्ट ऑफ द आर्कियोसेरेबेलम. मतलब ये पहले ही अपीयर हो चुका है. आफ्टर दैट सो टोटल एंटीरियर लोब, और साथ में क्या क्या जुड़ेगा? साथ में जुड़ेगा पिरामिड इव्यूला ऑफ इंफीरियर वर्मिस. ठीक है. सो एंटीरियर लोब, पूरे एंटीरियर लोब में क्या क्या था? एंटीरियर लोब में था सेंट्रल लोब्यूल एंड कलमेन, राइट, एंड आला और क्वाड्रेंगुलर लोब्यूल, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर का. तो इसमें लिंगुला नहीं है, बस इसके साथ क्या जुड़ जाएगा? पिरामिड जुड़ जाएगा एंड द इव्यूला ऑल्सो विल बी देयर. सो दिस इज द पैलियोसेरेबेलम. So paliocerebellum is chiefly spinocerebellar in connection and concerned with the tone, posture and crude movements of the limb. तो क्या स्पाइनोसेरिब्रल कनेक्शन फॉर्म करते हैं? मतलब सेरिबेलम से स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से सेरिबेलम. इसका जो कनेक्शन है दिस इज टोटली मैनिफेस्टेड बाय दिस पैलियोसेरेबेलम. सो दिस पैलियोसेरेबेलम इज कंसर्न विद द टोन, पोस्चर एंड क्रूड मूवमेंट्स ऑफ द लिम्स. लिम्स के जो टोन होता है, पोस्चर होता है और जो क्रूड मूवमेंट्स है, जो फाइन मूवमेंट्स है, दीज आर मैनिफेस्टेड बाय दिस पार्ट ऑफ द सेरिबेलम. मतलब पैलियोसेरेबेलम से.
नाउ लास्टली द नियोसेरिबेलम. नियोसेरिबेलम मतलब जो एकदम लास्ट अपीयर होता है. Phylogenetically the most recent part of the cerebellum to develop. This is also known as the cerebral cerebellum. ठीक है. So it develops in primates in association with the enlargement of the telencephalon and the cerebral cortex. These are totally developmental. ठीक है. So it is prominent in higher mammals. Higher mammals देखेंगे मतलब जैसे हम लोग ह्यूमन, तो ये बहुत प्रोमिनेंट है. इट इज़ मेड अप ऑफ मिडल लोब एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सेरिबेलम. दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सेरिबेलम एंड मेनली मेड अप ऑफ द मिडल लोब एक्सेप्ट द पिरामिड एंड द इव्यूला. ठीक है. सो द नियोसेरिबेलम इज चीफली कॉर्टिकोपोंटोसेरिबेलर इन कनेक्शन. कॉर्टिकोपोंटोसेरिबेलर जो फाइबर्स है, सो दिस फाइबर्स इज टोटली in relation with this neocerebellum. ठीक है. and is concerned with the smooth performance and skilled voluntary movements. ठीक है. तो इसका मेन फंक्शन क्या है नियोसेरिबेलम का? इट स्मूथ परफॉर्मेंस ऑफ द स्किल्ड वॉलंटरी मूवमेंट्स जो हम लोग का है, ये फंक्शन इज कमिंग फ्रॉम दिस नियोसेरिबेलम. क्लियर? प्लीज एवरीबडी रिप्लाई. These are the morphological subdivisions जिसमें archaeocerebellum, paleocerebellum and neocerebellums are there. What are the parts involved in this types of cerebellum and function क्या है? Have you understood everyone? कुछ भी समझ नहीं आए या फिर कोई डाउट है तो प्लीज़ फ्रीली पूछो. क्योंकि now we'll do the internal structure. Yes, everybody can understood? Okay. So now coming to the internal structure of the cerebellum. प्लीज़ वेट फॉर 5 minutes. ओके, प्लीज़ वेट 5 minutes नहीं, 2 minute के लिए थोड़ा सा. Okay, so we'll start the internal structure of the cerebellum. Now the cerebellum is made up of a thin surface layer of grey matter. ठीक है, ग्रे मैटर का एकदम thin surface होता है. The cerebellar cortex which is known as the cerebellar cortex. ठीक है, and the central core of white matter, जिसमें एक central core होता है white matter का. Embedded within the central core of white matter, there are a masses of grey matter called the intracerebellar nuclei. उसमें
थोड़ा छोटे छोटे मासेस ऑफ ग्रे मैटर ऑल्सो वी कैन सी इनसाइड द वाइट मैटर, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम इंट्रा सेरिबुलर न्यूक्लियाई वी कैन सी। द सेरिबुलर कॉर्टेक्स इज फोल्डेड इन सच अ वे दैट द सर्फेस ऑफ द सेरिबुलम प्रेजेंट्स अ सीरीज ऑफ पैरेलल ट्रांसवर्स फिशर, ठीक है। वो सेरिबुलम आप लोग देखोगे तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं, सेरिबुलर कॉर्टेक्स जो है वो ऐसे फोल्ड होता है। सो दिस फोल्ड वो ट्रांसवर्स फिशर्स जैसा दिखता है। एंड इंटरवेनिंग नैरो लीफ लाइक बैंड्स दैट इज नोन एज द फोलिया, मतलब उसमें लीफ लाइक बैंड ऑल्सो वी कैन सी, जो इट इज लुकिंग लाइक द फोलिया। ईच फोलियम कंसिस्ट ऑफ अ स्लेंडर ब्रांच्ड लेमाइना। तो वो फोलियम क्या है, एक एक फोलियम में क्या है, फिर ब्रांच लेमाइना वी कैन सी, ठीक है। ब्रांच लेमाइना दिखता है उसमें। सो जिसका सेंट्रल कोर ऑफ वाइट मैटर है, कवर्ड बाय अ थीन लेयर ऑफ ग्रे मैटर, ठीक है। द सेंट्रल कोर ऑफ वाइट मैटर बीइंग अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ब्रांच पैटर्न ऑफ अ ट्री। तो वो जो सेंट्रल कोर ऑफ वाइट मैटर है उसमें हम लोग ना ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ ट्री जैसा दिखता है। बिकॉज ऑफ दिस ये जितने सारे फोल्ड है और फोल्ड के साथ साथ जो इंटरवीनिंग ब्रांचिंग है, सो दिस ब्रांचिंग ये वाइट मैटर के अंदर भी वो एक ना ऐसे फॉर्म होता है, इट इज़ लुकिंग लाइक एग्जैक्टली ट्री, ठीक है, ट्री जैसा दिखता है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज द आर्बर वाइटी सेरिबुलाई। आर्बर वाइटी मीन्स ट्री ऑफ लाइफ, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस अरेंजमेंट ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेरिबुलम, मतलब इसमें बहुत सारे फोल्डिंग है, जो फोल्डिंग को हम लोग फोलिया बोलते हैं। देन उसमें हम लोग ब्रांच भी देखते हैं, एंड बहुत सारे ब्रांच जो वाइट मैटर में भी कंटिन्यू होता है। सो बिकॉज ऑफ दिस ये पूरे जो सिस्टम है, मतलब पूरा जो ये ओरिएंटेशन है, दिस इज़ लुकिंग लाइक अ ट्री। सो दैट्स वाई दिस ओरिएंटेशन इज नोन एज द आर्बर वाइटी सेरिबुलाई, ठीक है। So now coming to the white matter. So the gray matter of the cerebellum is represented by, coming to the gray matter of the cerebellum is represented by the cerebellar cortex and the intracerebellar nuclei. उसमें cerebellar cortex है gray matter में और intracerebellar nuclei है। अब structure क्या है cerebellar cortex का, ये हम लोग देख रहे हैं। The structure of the cerebellar cortex is uniform throughout, हर जगह, इसीलिए इसको होमोटिपिकल भी बोलते हैं। टोटली ये स्ट्रक्चर वाइज यूनिफॉर्म है। तो सेरिबेलर कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट लेयर, उसमें दिखता है एन आउटर मॉलिक्यूलर लेयर, एन इंटरमीडिएट पर्किंजी सेल लेयर एंड इनर ग्रैन्युलर लेयर। ये हिस्टोलॉजी में आप लोग देखे थे सेरिबेलम के, एमपीजी जो था, एमपीजी फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, देयर विल बी द मॉलिक्यूलर लेयर, then Purkinje cell layer and the granular layer. So this is the internal structure. ये मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी यू नो अबाउट द हिस्टोलॉजी माइक्रो एनाटॉमिकल फीचर्स, ठीक है। सेरिबेलम हो चुका है तो आप लोगों को माइक्रो एनाटॉमिकल फीचर्स भी पता है, हिस्टोलॉजिकल फीचर्स। और एक चीज़ है, इसमें बहुत सारे फाइबर्स होता है, जैसे कि क्लाइंबिंग फाइबर्स, मोजी फाइबर्स, बहुत सारे जैसे बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है, जैसे गोल्गी सेल, बास्केट सेल, स्टीलेट सेल, पर्किंजी सेल्स, ठीक है। ये मैं मतलब डिटेल्स में नहीं जाऊंगी। आई होप फिजियोलॉजी में भी आप लोग, मतलब प्लीज़ रिप्लाई, फिजियोलॉजी में भी सेरिबेलम हो चुका है क्या? क्योंकि फिजियोलॉजी में भी आप लोग ये क्लाइंबिंग फाइबर्स, मोजी फाइबर्स, ये सब अच्छे से देखोगे। तो अभी मैं नहीं बताऊंगी, उतना कंफ्यूज नहीं करूंगी आप लोगों को। So we'll see only the main internal structure. So now coming to the intracerebellar nuclei, ठीक है। intracerebellar nuclei क्या क्या हम लोग देखेंगे। So the intracerebellar nuclei also called, you can say the central nuclei भी बोल सकते हो। These are the masses of grey matter embedded in the white matter. ये masses of grey matter है जो white matter के अंदर दिखते हैं। On each side of the midline they are 4 in number, मतलब both the side, if we draw an imaginary line in the middle of the cerebellar hemisphere और cortex में, so ये both the side हम लोग न्यूक्लियस देखते हैं,
बाइलैटरल रहता है ये. ओके, सो व्हाट आर दिस न्यूक्लियस? दिस न्यूक्लियस आर, फर्स्ट विल बी योर फेस्टिजियल न्यूक्लियस. एक्चुअली आउटसाइड टू इनसाइड हम लोग लैटरल टू मीडियल अगर देखेंगे, डेंटेट न्यूक्लियस, एम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ग्लोबोसस और ग्लोबोस न्यूक्लियस, एंड द न्यूक्लियस फेस्टिजियस और फेस्टिजियाई, जो भी बोलो. ठीक है. सो द न्यूमोनिक्स इज द डॉक्टर्स ईट गुड फूड. ठीक है, डॉक्टर्स ईट गुड फूड. डॉक्टर्स से होगा डेंटेट न्यूक्लियस फ्रॉम लेटरल टू मीडियल. देन ईट से होगा एम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियस. गुड से होगा ग्लोबोस न्यूक्लियस और न्यूक्लियस ग्लोबोसस. देन एफ से होगा, मतलब फूड से होगा न्यूक्लियस फेस्टिजियाई और फेस्टिजियल न्यूक्लियस. ठीक है. सो दीज आर द intracerebellar nuclei we can see in the gray matter. This is a part, this nuclei are the gray matter and embedded in the white matter. From lateral to medial, doctors eat good food. Dentate nucleus, it's like a crumpled bag. जैसे कि ओलिवरी न्यूक्लियस देखे थे, वैसे ही ये थोड़ा सा क्रम्पल्ड है लेटरल साइड में. फिर एम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियस, फिर न्यूक्लियस ग्लोबोसस, देन न्यूक्लियस फेस्टिजियस. ठीक है. सो अब डेंटेट न्यूक्लियस, दिस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट न्यूक्लियस वी कैन सी हियर. ठीक है. सो इट इज़ द न्यूक्लियस ऑफ नियोसेरिबेलम. ये नियोसेरिबेलम का है, क्रम्पल बैग लाइक इसका शेप है. एंड the interior of the nucleus is filled with the white matter. जो इंटीरियर देखेंगे ये डेंटेट न्यूक्लियस का, इसमें बहुत सारे वाइट मैटर रहता है. ठीक है. एंड मेड अप ऑफ इफरेंट फाइबर्स दैट लीव द न्यूक्लियस थ्रू द हाइलम. ठीक है. इफरेंट फाइबर्स हाइलम से निकलता है, फॉर्मिंग द मोस्ट ऑफ द सुपीरियर सेरिबुलर पेडंकल. तो इसका जो फाइबर्स निकल रहे हैं वही फॉर्म करते हैं सुपीरियर सेरिबुलर पेडंकल को. Clear? Now these fibers include the dentorubral or dentothalamic fibers that are relaying in the red nucleus and ventral lateral nucleus of the thalamus respectively. थैलामस जब पढ़ेंगे उसमें देखेंगे उसमें रेड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वेंट्रल लेटरल न्यूक्लियस प्रेजेंट है. तो ये जो फाइबर्स है जो डेंटेट न्यूक्लियस से निकल रहा है, दिस फॉर्म द सुपीरियर सेरिबुलर पेडंकल. तो क्या क्या फाइबर्स है उसमें? डेंटो रूब्रल एंड डेंटोथैलेमिक न्यूक्लियस, सॉरी फाइबर्स. ठीक है. एंड दिस फाइबर्स फ्रॉम द रेड न्यूक्लियस एंड थैलामस प्रोजेक्ट टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड सेरिब्रल कॉर्टेक्स रेस्पेक्टिवली. तो ये जो फिर थैलामस में जा रहा है, थैलामस से फिर ये स्पाइनल कॉर्ड और सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पहुंच रहे हैं और रिले कर रहे हैं. ठीक है. क्लियर हुआ? अगेन आई रिपीट, ये जो डेंटेट न्यूक्लियस है, सो दिस इज अ मास ऑफ अ ग्रे मैटर विच इज़ प्रेजेंट इन द वाइट मैटर. सो इसमें एक हाइलम है. सो हाइलम से ये इफरेंट फाइबर्स रिलीज करते हैं. सो दिस फाइबर्स फॉर्म्स द सुपीरियर सेरिबुलर पेडंकल. ठीक है. क्लियर? सो दिस सुपीरियर सेरिबुलर पेडंकल में किस किस टाइप के फाइबर्स रहते हैं? डेंटोरूब्रल एंड डेंटोथैलेमिक, जो रिले करते हैं रेड न्यूक्लियस एंड वेंट्रल लेटरल न्यूक्लियस ऑफ द थैलामस उसमें. ठीक है. अब ये थैलामस से फाइबर्स कहाँ जाते हैं? स्पाइनल कॉर्ड में एंड सेरिब्रल कॉर्टेक्स में. नाउ कमिंग टू द एम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियस, इट इज ओवल इन शेप एंड सिचुएटेड मीडियल टू द डेंटेट न्यूक्लियस, पार्शियली कवरिंग इट्स हाइलम. मतलब ये जो हाइलम है डेंटेट न्यूक्लियस को, इसको पार्शियली कवर करके रखते हैं. नाउ इट इज़ द न्यूक्लियस ऑफ पैलियोसेरिबेलम. डेंटेट न्यूक्लियस था नियोसेरिबेलम का पार्ट, ये पैलियोसेरिबेलम का है. सो हेंस इट रिसीव्स द एफरेंट फाइबर्स. इसमें फाइबर्स आते हैं, रिसीव्स द एफरेंट फाइबर्स. ठीक है. सो इट गिव फाइबर्स टू द रेड न्यूक्लियस वाया सुपीरियर सेरिबुलर पेडंकल. ये भी रेड न्यूक्लियस में पहुंचाते हैं वाया द सुपीरियर सेरिबुलर पेडंकल. देन रेड न्यूक्लियस से ये स्पाइनल कॉर्ड पहुंचते हैं थ्रू द रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट.
जिसका फंक्शन है फ्लेक्चर ऑफ द मसल टोन, फ्लेक्चर मसल टोन फैसिलिटेट्स करते हैं, ठीक है। तो ये एम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियस एफरेंट फाइबर्स रिसीव करते हैं, बट इफरेंट भी भेजते हैं, इफरेंट भेजते हैं रेड न्यूक्लियस को वाया सुपीरियर सेरिबेलर पेडांकल। देन ये सुपीरियर पेडांकल रेड न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है, थैलेमस में। देन वो फाइबर्स कहाँ जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में थ्रू द रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट, तो जिसका फंक्शन है विच फैसिलिटेट्स द फ्लेक्चर मसल टोन, ठीक है। नाउ कमिंग टू द ग्लोबोसस न्यूक्लियस और ग्लोबोस न्यूक्लियस, ठीक है। इट इज राउंडेड इन शेप एंड लाइज बिटवीन द एम्बोलिफॉर्म एंड द फेस्टिजियल न्यूक्लियस, ठीक है। तो इट हैज़ ऑल्सो द सिमिलर कनेक्शन, जैसे एम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियस का है, इसका सिमिलर कनेक्शन ही है। नाउ द ग्लोबोस एंड एम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियस टुगेदर आर समटाइम्स रेफर्ड टू एज द न्यूक्लियस इंटरपोजिटस। इंटरपोजिटस आप लोग बहुत जगह में आप लोग को मिलेगा न्यूरो पढ़ते हुए। सो ये न्यूक्लियस ग्लोबोसस एंड न्यूक्लियस एम्बोलिफॉर्म, ये दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस इंटरपोजिटस, ठीक है। नाउ लास्टली द फेस्टिजियल न्यूक्लियस। फेस्टिजियल न्यूक्लियस लाइज नियर द मिडलाइन इन द वर्मिस, ठीक है, दिख ही रहा है, पिक्चर देखो, एंड क्लोज टू द रूफ ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल का जो रूफ है उसके बहुत क्लोज प्रेजेंट है ये। इट इज सिमिलर देन दैट ऑफ द डेंटेड न्यूक्लियस, ठीक है, एंड लार्जर देन द एम्बोलिफॉर्म एंड ग्लोबोस न्यूक्लियस, उससे थोड़ा सा लार्ज ही होता है फेस्टिजियल न्यूक्लियस। नाउ दिस न्यूक्लियस इज अ पार्ट ऑफ अ आर्किसेरिबेलम, आर्किसेरिबेलम, सो हेंस इट रिसीव्स द एफरेंट फाइबर्स फ्रॉम द फ्लोक्यूलोनोड्यूलर लोब, ठीक है। ये एफरेंट फाइबर रिसीव करते हैं फ्लोक्यूलोनोड्यूलर लोब से, और जो इफरेंट फाइबर्स भेजते हैं वो भेजते हैं वेस्टिबुलर एंड रेटिकुलर न्यूक्लियाई पे। द फेस्टिजियल कनेक्शंस इन्फ्लुएंस द एक्सटेंशन मसल टोन। फ्लेक्चर मसल टोन मेंटेन कर रहा था एम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियस एज वेल एज ग्लोबोस न्यूक्लियस। सो इसका जो फंक्शन है, ये इफरेंट भेजते हैं वेस्टिबुलर न्यूक्लियस को और रेटिकुलर न्यूक्लियस को। सो द फेस्टिजियल कनेक्शन इन्फ्लुएंस द एक्सटेंशन मसल टोन। क्लियर? Everybody can understood the all the nucleus present in the cerebellum, उसका फंक्शन क्या है, क्या क्या फाइबर्स भेजते हैं। Yes, clear? Okay, thank you. The white matter of the cerebellum is made up of 3 types of fibers. White matter में जो वो mainly 3 टाइप के फाइबर्स होते हैं, जिसमें एक intrinsic fibers है, afferent fibers, efferent fibers. Intrinsic fibers remain confined within the cerebellum, वो cerebellum के अंदर ही होता है। They connect the different regions of the cerebellum either in the same hemisphere or other hemisphere also, मतलब वो cerebellum के अंदर ही है। और through the afferent and efferent fibers, the cerebellum is connected with the other parts of the CNS, ठीक है। मैं तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स, स्पाइनल कॉर्ड, उसके साथ जो एफरेंट इफरेंट फाइबर्स है वो कनेक्ट करते हैं। नाउ कमिंग टू द कनेक्शंस ऑफ द सेरिबेलम। ठीक है, सो सम एफरेंट फाइबर्स आर देयर, सम इफरेंट फाइबर्स आर देयर। So the cerebellum receives input through the afferent fibers mainly from the cerebral cortex, spinal cord and vestibular apparatus. Vestibular apparatus में क्या क्या है? Semicircular canal, saccule, utricle. These are the part of, किसका पार्ट है बताओ तो? Saccule, utricle, semicircular canal. Please reply. And it also receives input from the red nucleus and tectum of the midbrain. No audio. एक सेकेंड, आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम, यहाँ पे नेट थोड़ा
बिजी दिखा रहा है। Now am I audible? Now am I audible? सो जनरली एफरेंट फाइबर्स में यस ओके, सो एफरेंट फाइबर्स में जो है सेरिबेलम जनरली रिसीव करते हैं फाइबर्स फ्रॉम द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, स्पाइनल कॉर्ड, वेस्टिबुलर apparatus and the red nucleus or tectum of the midbrain, यहाँ से। Now the cerebellar cortex sends information to the cerebellum through the cerebral cortex जो है, तो cerebral cortex से cerebellum में जो fibers आते हैं, these are the corticopontocerebellar fibers, cerebro-olivocerebellar fibers and the cerebro-reticulocerebellar pathways. So these pathways only see if cerebellum comes as a long question, so you have to write this connections also. Connections are very important in case of neuroanatomy. So ये जो डायग्राम है, नो नीड टू डिस्क्राइब ब्रीफली डायग्राम। अब डायग्राम में जैसे ये जो डायग्राम मैं दिखा रही हूँ, ये डायग्राम ड्रॉ करके अच्छे से लेवलिंग करोगे तो भी चल जाएगा। बस इतना आपको बताना है कि क्या क्या एफरेंट फाइबर्स आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, और इफरेंट फाइबर्स के लिए इफरेंट फाइबर्स क्या क्या जा रहा है और कहाँ कहाँ जा रहा है, बस इतना ही। नो नीड टू डिस्कस ब्रीफली, क्योंकि उतना टाइम नहीं मिलेगा आप लोगों को लिखने में अगर लॉन्ग क्वेश्चन आया तो, ठीक है। सो कनेक्शंस ऑल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ न्यूरो एनाटमी। जितने सारे आप लोग पढ़ोगे अभी न्यूरो, सब में कनेक्शंस दिखेगा, बिकॉज दीज आर द पार्ट्स ऑफ अ नर्व्स, ठीक है। नर्वस सिस्टम ही रिलेटेड है टोटली, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम न्यूरो एनाटमी जो है। सो दीज आर द कनेक्शंस ऑफ द पाथवे, कनेक्शंस ऑफ नर्व फाइबर्स, सॉरी कनेक्शंस ऑफ नर्व फाइबर्स। तो ये नर्व फाइबर्स यहाँ से वहाँ जाते हैं, वहाँ से वहाँ जाते हैं, और जो भी फंक्शन हो उसको रिले करते हैं। सो दिस कनेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं जो जो बोल रही हूँ और डायग्राम बुक में भी है, और जो ये पीपीटी में जो मैं पिक्चर दिखा रही हूँ, इसको ड्रॉ करके लेबलिंग करके अगर थोड़ा सा लिख दोगे कि कहाँ क्या क्या फाइबर्स है, एफरेंट है तो क्या क्या फाइबर्स आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, और इफरेंट है तो क्या क्या फाइबर्स जा रहा है और कहाँ जा रहा है, यही मेन है। सो द सेरिब्रल कॉर्टेक्स सेंड्स इंफॉर्मेशन टू द सेरिबेलम थ्रू द क्या क्या फाइबर्स है, corticopontocerebellar fibers, cerebro-olivocerebellar fibers and cerebro-reticulocerebellar pathways. तो स्पाइनल कॉर्ड सेंड्स सबकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्टिव इंफॉर्मेशन टू द सेरिबेलम। ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स से 3 फाइबर्स आ रहा था, यह डायग्राम में है, देखो कॉर्टिकोपोंटोसेरेबुलर फाइबर्स, ठीक है, जो रेड कलर में है डायग्राम में, एफरेंट फाइबर्स दीज आर। देन द cortico-olivocerebellar fibers, corticopontine also will be there. Then the cerebro-reticulocerebellar pathways, cerebro-reticulocerebellar pathways. ये स्पाइनल कॉर्ड से क्या क्या आ रहा है, स्पाइनल कॉर्ड से आ रहा है पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबुलर, एंटीरियर स्पाइनोसेरिबुलर एंड द क्यूनियोसेरिबुलर ट्रैक्ट्स। posterior spinocerebellar, anterior spinocerebellar and cuniocerebellar tract. These are coming from the spinal cord. These are all afferent fibers of the cerebellum. Now ये जो afferent fibers है, the afferent fibers enters into the cerebellum through the middle and the inferior cerebellar peduncle. Middle और inferior cerebellar peduncle से ये mainly afferent fibers cerebellum के अंदर आता है. So they are classified in 2 types of fibers. So these are climbing fibers and mosey fibers. So climbing fibers, mosey fibers, I think आप लोग physiology में details में पढ़ोगे, तो मैं details में नहीं जाऊँगी. So इतना जान के रखो, जितने सारे afferent fibers है तो वो cerebellum में आता है through the inferior and middle cerebellar peduncle के साथ, ठीक है. तो and these fibers are known as here the climbing fibers and mosey fibers.
सो क्लाइंबिंग फाइबर्स का क्या क्या है, मॉजी फाइबर्स का कैसे पाथवे है, ये मैं डिटेल्स अभी नहीं बता रही हूँ. सो ऑल द एफरेंट फाइबर्स ऑफ द सेरिबेलम आर मॉजी फाइबर्स एक्सेप्ट ओलिवोसेरिबुलर. ये याद करके रखना. रिमेंबर ऑल द एफरेंट फाइबर्स ऑफ द सेरिबेलम आर मॉजी फाइबर्स. सब मॉजी फाइबर्स है एक्सेप्ट द ओलिवोसेरिबुलर फाइबर्स फ्रॉम द इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस, जो इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस से आ रहा है. एंड और क्या है, एंड द पर ओलिवोसेरिबुलर फाइबर्स, पर ओलिवोसेरिबुलर फाइबर्स विच आर क्लाइंबिंग फाइबर्स. तो ये दोनों फाइबर्स है क्लाइंबिंग फाइबर्स, बट अदर्स जितने सारे एफरेंट फाइबर्स है दीज आर ऑल मॉजी फाइबर्स. ठीक है. नाउ कमिंग टू द इफरेंट फाइबर्स. सो इफरेंट मीन्स व्हाट आर द फाइबर्स सेरिबेलम exits from the cerebellum. ठीक है. So the efferent fibers from cerebellum pass to the red nucleus of the thalamus, vestibular complex and reticular formation. ठीक है. The entire output of the cerebellar cortex is through the axons of the Purkinje cells. जो Purkinje cells के axons है. So this axon C, ये सारे axon C as a fibers it exit out from the cerebellum. तो जनरली ये कहाँ जा रहा है, थैलामस में जा रहा है, रेड न्यूक्लियस में जा रहा है, रेटिकुलर फॉर्मेशन में जा रहा है एंड द वेस्टिबुलर कॉम्प्लेक्स वहीं पे भी जा रहा है. सो मोस्ट ऑफ द एक्शन ऑफ द Purkinje सेल एंड्स बाय साइनेप्सिंग विद द न्यूरॉन्स ऑफ द इंट्रासेरिबुलर न्यूक्लियाई. मतलब वो ग्लोबोसास, फेस्टिजियस, वो जो इंट्रासेरिबुलर उसमें भी मैं फाइबर्स बताई, तो उसके साथ साइनेप्सिंग करके ये एंड होता है. The axons of neurons of intracerebellar nuclei in turn project to the other parts of the nervous system. So a few Purkinje cell neuron from the flocculonodular lobe and vermis pass directly, मतलब flocculonodular lobe से और the vermis से कुछ फाइबर Purkinje cell के axons है वो directly जाते हैं बाहर out of the cerebellum and end into the lateral vestibular nucleus. लैटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस जहाँ पे है वहाँ पे डायरेक्टली ये सेरिबेलम से निकल के एंड होते हैं. नाउ द फाइबर्स फ्रॉम द डेंटेड एम्बोलिफॉर्म एंड द ग्लोबोस न्यूक्लियाई लीव द सेरिबेलम थ्रू द सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल. ये तो मैं पहले ही बोली थी. मतलब डेंटेड न्यूक्लियस, ग्लोबोस न्यूक्लियस एंड द एम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियस, यहाँ से जो फाइबर्स निकल रहा है दिस फाइबर्स एग्जिट आउट थ्रू द सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल. और जो फाइबर्स फेस्टिजियल न्यूक्लियस से निकल रहा है वो इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू निकल रहा है. ठीक है. सो मेन कनेक्शंस, विश्राम सिंह के बुक में 2 कनेक्शंस है सेरिबेलम का. सो वो आप लोग अगर देख लोगे, मतलब देख के ड्रॉ कर लोगे तो भी चलेगा. इजी डायग्राम है बिल्कुल विश्राम सिंह का. अच्छा, अगर आप लोग, मैं भेज देती हूँ आप लोगों को, मेरे पास भी है, भेज देती हूँ, व्हाट्सअप कर देती हूँ. ओके, सी दिस पिक्चर मैं भेज दी हूँ, आप लोग देखो. ओके, अब मैं थोड़ा सा आपको ये बता दे रही हूँ कि पेडंकल के थ्रू जो फाइबर्स है,
ये भी ये डायग्राम में कवर हो जाएगा। ये डायग्राम मैं जो भेजी हूँ, अगर आप लोग अच्छे से ये डायग्राम को ड्रॉ करके थोड़ा सा ये जो फाइबर्स मैंने बताया, जो एफरेंट कहाँ से कहाँ जा रहा है और इफरेंट कहाँ से कहाँ, मतलब सेरिबेलम में कहाँ आ रहा है, क्या कहाँ से आ रहा है, तो ये थोड़ा सा लिख के ये डायग्राम बना दोगे तो सफिशिएंट है। नो नीड टू डिस्क्राइब ब्रीफली। ठीक है, क्लियर हुआ कनेक्शंस? Please reply. Have you understood everyone? Connections of the cerebellum. नो फंक्शंस सबको पता ही है, मैं एकदम इंट्रोडक्शन से बोल रही हूँ क्या क्या फंक्शंस है सेरिबेलम का। सो ये मैं डिटेल्स नहीं बोलूँगी। नाउ कमिंग टू द आर्टियल सप्लाई ऑफ द सेरिबेलम। ठीक है, सो द सेरिबेलम इज सप्लाइड बाय थ्री पेयर्स ऑफ सेरिबेलर आर्टरीज। तो क्या क्या है? सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी एंड पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। बस इतना जानने से ही चलेगा। Superior cerebellar artery, मतलब this is a branch from the basilar artery which supply the superior surface of the cerebellum. Then anterior inferior cerebellar artery, this is a branch from the basilar artery only, and ये supply करता है anterior part and inferior part of the cerebellum. और posterior inferior cerebellar artery ये है vertebral arteries के branch, तो ये supply करते हैं posterior part and inferior surface of the cerebellum, posterior part of the inferior surface of the cerebellum, or anterior part of inferior surface of cerebellum is supplied by the anterior inferior cerebellar artery, और total superior surface को supply करते हैं superior cerebellar artery. तो superior cerebellar artery and the anterior inferior cerebellar arteries are branch from the basilar artery, और posterior inferior cerebellar artery is a branch from the vertebral artery. So this is the arterial supply. Now little clinical anatomy, mainly cerebellar dysfunction. Vermis lesions lead to truncal ataxia. ठीक है, vermis lesion अगर उसमें कुछ lesions दिखे तो that leads to the truncal ataxia. Nystagmus also will be there, is due to the loss of labyrinthine connection of vermis to the labyrinth, मतलब ear के साथ बोल रहे हैं. Now anterior lobe lesions also will be there. Neocerebellar lesions also there. Speech is also defective because of this cerebellum. So बहुत कुछ है यहाँ पे, मैं डिटेल्स नहीं जा रही हूँ, बस जितना मैंने Rombert signs also is very important. The patient is unable to maintain balance while standing upright and falls on closing the eyes. जैसे आँख बंद करते हैं ना, वैसे गिर जाते हैं. तो ऐसा ये इक्विलिब्रियम या फिर ये डिसफंक्शंस वी कैन सी in case of there will be any lesions or anything else related to the cerebellum, vermis के साथ या फिर आधा cerebral hemisphere के जो lobules हैं उसमें अगर कुछ हो तो ये सब symptoms we can see. मतलब और ये जो मैंने बोला अभी, जो the patient is unable to maintain balance while standing upright, ठीक है, तो and also falls on closing the eyes, मतलब आँख बंद करने में गिर भी जाते हैं. सो दिस जो इस दिस टाइप के सिम्टम्स एंड दिस डिसऑर्डर इज नोन एज द रॉम्बर्ट्स साइन. ठीक है, रॉम्बर्ट्स साइन. Nystagmus actually the involuntary to and fro oscillatory movements of the eyeballs while looking to either side. बोथ द मतलब ईदर साइड में देखने से यहाँ पे ऑसिलेटरी आईबॉल के मूवमेंट्स होते हैं. सो दिस इज नोन एज द निस्टैग्मास. ट्रंकल अटैक्सिया, सो ये होता है सेरिबेलर डिसफंक्शन में. ट्रंकल अटैक्सिया क्या है? द पेशेंट इज अनस्टेडी व्हाइल स्टैंडिंग एंड स्टैगरिंग व्हाइल वॉकिंग. अगर चलने लगते हैं तो उसमें मतलब ठीक से चल नहीं पाते हैं.
और अनस्टेडी है, मतलब, और खड़े भी नहीं हो पाते हैं, खड़े होने में भी वो अनस्टेडी होता है। तो दिस टाइप ऑफ सिम्टम्स, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रंकल अटैक्सिया और स्टैगरिंग गेट भी बोलते हैं। सो दीज आर ऑल द सेरिबेलर सिंड्रोम। इसको हम लोग सेरिबेलर डिस्फंक्शन और सेरिबेलर सिंड्रोम बोलते हैं। देन हाइपोटोनिया के बारे में भी मैं पहले ही बताई हूँ। Dysmetria also will be there. Dysmetria means there will be the equilibrium problem. Then dysdiadochokinesis, ये फिजियोलॉजी में भी आप लोग प्रैक्टिकली करोगे। Dysdiadochokinesis, उसमें inability to execute alternate movements in rapid succession. प्रोनेशन सुपाइनेशन अगर करने बोलोगे ना, सो प्रोनेशन सुपाइनेशन वो कर नहीं पाएगा। सो दिस टाइप ऑफ फंक्शंस, डिसफंक्शंस नोन एज द डिसडायाडोकोकाइनेसिस। ठीक है, डिसडायाडोकोकाइनेसिस। तो ये सब सिंड्रोम हम लोग देखेंगे इफ़ देयर इज़ एनी डिजीज रिलेटेड टू द सेरेबेलम। सेरेबेलर डिसफंक्शन में ये सारे डिसफंक्शन होता है। समटाइम्स स्पीच ऑल्सो विल बी डिफेक्टेड, स्पीच भी डिफेक्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर एवरीवन? सेरिबेलम क्लियर है? सेरिबेलम के मतलब मैं थोड़ा सा अभी फिर ये कर दे रही हूँ, समराइज कर दे रही हूँ। फर्स्ट यू हैव टू सेरिबेलम कम्स एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, रिमेंबर। तो पहले आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। व्हाट इज सेरिबेलम, कहाँ पे प्रेजेंट है, ये किसके पार्ट है, दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, फंक्शन क्या है, थोड़ा सा बोल के फिर एक्सटर्नल फीचर्स में आना है। क्या क्या पार्ट्स है इसमें, सरफेस कितने हैं, नॉचेस क्या है और फीचर्स क्या है, एक्सक्यूज मी। देन सब डिविजन्स बताना है, जैसे कि वर्मिस का सब डिविजन्स क्या है, लोब्यूल्स क्या फॉर्म करते हैं। फिर दिस आर द ऑल एनाटॉमिकल सब डिविजन। देन सेरिबेलर हेमिस्फीयर के सब डिविजन्स क्या है वो बताना है। देन मॉर्फोलॉजिकल सब डिविजन्स क्या है, 3 मॉर्फोलॉजिकल मेन सब डिविजन्स है, आर्कियोसेरिबेलम, पैलियोसेरिबेलम, नियोसेरिबेलम। उसमें क्या क्या पार्ट इन्वॉल्व होता है, उसका फंक्शन क्या है, ये बताना है। देन इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर में जनरली वाइट मैटर, ग्रे मैटर, वाइट मैटर में तो वो फाइबर्स ही आ जाएगा सारे, और जो न्यूक्लियाई, डेंटेड न्यूक्लियस, वो सब आएगा। और ये सब न्यूक्लियस से क्या क्या फाइबर्स कहाँ कहाँ जा रहा है और एफरेंट भी क्या क्या आ रहा है, ये बताना है आप लोगों को। तो उसमें कनेक्शंस ऑफ द सेरिबेलम भी हो जाएगा, एफरेंट फाइबर्स क्या रिसीव कर रहा है और इफरेंट फाइबर्स क्या भेज रहे हैं। सो वो आपको मेंशन करके डायग्राम बनाना है। एंड देन आफ्टर दैट देयर विल बी द आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द सेरिबेलम, आर्टेरियल सप्लाई बताना है। एंड देन लास्टली द अप्लाइड पार्ट, अप्लाइड पार्ट 3-4 अप्लाइड, 2-3 या 3-4 अप्लाइड लिख दोगे तो एनफ है। ओके, हैव यू अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर? इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी। क्लियर हुआ सबको? प्लीज रिप्लाई। एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? Okay, so thank you for today.